السلام علیکم ناظرین، روشنی ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ خبرنامے کا آغاز کرتے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ جس وقت بھی صبح کو یا شام کو اپنے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی مہمانی کا سامان تیار کرواتے ہیں، وہ جتنی مرتبہ بھی صبح یا شام کو جائے۔ خبروں سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں کی جانب۔ سعودی عرب میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی، ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ مختلف سیاسی قائدین نے کیا افسوس کا اظہار۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہیلپ ڈیسک کا کیا گیا قیام۔ مکہ مکرمہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد خاندان کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان۔ ہر خاندان کے 2 افراد کو سعودی لے جانے کا کیا جائے گا انتظام، ریاستی کابینہ۔ حیدرآباد میں واقع گاندھی بھون میں ووٹ چوری احتجاجی پروگرام میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڑ نے شرکت کرتے ہوئے کیا خطاب۔ نظامباز سی پی سعید چیتنیا سے IMA نو منتخب ضلعی شاخ کے نمائندوں نے کی ملاقات۔ سی پی کی تجاویز کے مطابق موٹر سائیکل مالکین کو ہیلمٹ کی فراہمی عمل میں لا کر حادثے پر قابو پانے کا IMA کے نمائندوں نے کیا اظہار۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کریں گے، ضلع کھمم کے ایروپالم منڈل کے جملہ پورم میں تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کیا طوفانی دورہ۔ کانگریس اور BRS نے بے روزگار طلباء کو روزگار الاؤنس دینے کا وعدہ کرتے ہوئے دھوکہ دیا، اربن MLA دھن پال کا اظہار۔ محکمہ پولیس کے تحت موصول ہونے والے 20 شکایتوں کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے سی پی سعید چیتنیا نے اس سے متعلق پولیس اہلکاروں کو دی ہدایت۔ اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی طرف۔ سعودی عرب حادثہ تلنگانہ کے زائرین کی تفصیلات حاصل کریں، چیف منسٹر کی ہدایت پر کنٹرول روم کیا گیا قیام۔ سعودی عرب میں ہونے والے ہولناک سڑک حادثے میں جان بحق ہونے والوں میں تلنگانہ ریاست سے تعلق رکھنے والے کئی افراد کے بھی شامل ہونے کی خبروں پر ریاست کے چیف منسٹر ریونت ریڈی نے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ریاستی حکومت کے چیف سیکریٹری کے رانا کرشنا راؤ نے آج نئی دہلی میں مقیم ریزیڈنٹ کمشنر اور وزارت خارجہ ہند کے حکام سے بات چیت کرتے ہوئے ہدایت دی کہ حادثے میں جاں بحق ہونے والوں کی تفصیلات فوری طور پر حاصل کی جائیں اور ان کے لواحقین کو ہر ممکن مدد فراہم کی جائے۔ چیف سیکریٹری نے بتایا کہ سعودی عرب میں پیش آئے اس خوفناک بس حادثے سے متعلق معلومات اور امداد کے لیے ریاستی سیکریٹریٹ میں خصوصی کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے۔ فوڈ فیسٹیول کا مقصد طلباء کو تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا اور معیاری پکوان سے واقف کرنا ہے۔ اسلامیہ ماڈل ہائی اسکول بھینسے میں فوڈ فیسٹیول کا عظیم الشان پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا۔ مفتی اطہر اللہ قاسمی، فیض اللہ خان صدر مجلس اور حافظ عبداللطیف امام و خطیب مسجد پنجہ شاہ نے افتتاح کیا اور طلباء و طالبات سے خطاب کرتے ہوئے طلباء و طالبات کی جانب سے اہتمام کردہ مختلف غذائی اشیاء کی نمائش اور فروخت پر اظہار مسرت کیا۔ انہوں نے کہا کہ فوڈ فیسٹیول کے انعقاد کا مقصد کھانے سے متعلق پیدا ہونے والی بیماریوں اور صحت کے خدشات سے طلباء اور ان کے سرپرستوں کے علاوہ عوام کو واقف کرنا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہوتی ہے کہ فوڈ فیسٹیول کے ذریعے بچوں کی تخلیقی صلاحیتیں نمایاں ہوتی ہیں، جس طرح یوم اطفال منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر طلباء و طالبات نے اپنی جانب سے غذائی اشیاء کی نمائش کی، جسے بے حد
पसंद किया गया। सरपरस्तों की एक बड़ी तादाद ने भी इस फूड फेस्टिवल का मुशाहिदा करते हुए अपनी मसरत का इजहार किया। इस मौके पर सियासी, समाजी व मजहबी कायदीन के अलावा स्कूल सदर मदरिस अब्दुल बासित सिद्दीकी, अब्दुल सलीम सेक्रेटरी, सैयद सईद मैनेजिंग डायरेक्टर, असातिज़ा जिनमें शेख अमीर, अनवर मोहिउद्दीन, शेख मसूद, MA फैसल, जुबैर अहमद के अलावा मुअल्लिमात की कसीर तादाद मौजूद थी। इसलिए कि दुनिया के अंदर जितनी ज़रूरियात है चार हैं, उन ओहदों के एतबार से जिस तालीम के ज़रिए से वहाँ तक पहुँचा जा सकता है वो तालीम यहाँ पर दी जाती है। और इस तालीम के ज़रिए से जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे तो पहुँचने के बाद इस्लामी एतबार से जो फ़ैसले हम कर सकते हैं दूसरों से वो इंसाफ की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम इस फील्ड के अंदर कदम रखें तो इसके अंदर मुकम्मल तौर पर मेहनत करें और मुकम्मल तौर पर दिलचस्पी के साथ, दिलजमई के साथ इसके अंदर लगे रहें। असातिज़ा की भी एक ज़िम्मेदारी इस पर यह होती है कि जिन तलबा को ये महसूस कर सकते हैं कि ये तलबा आगे पहुंचकर कोई बड़े ओहदों पर फाइज हो सकते हैं या तालिबात उस ओहदों को संभाल सकती है, तो उनकी रहबरी और रहनुमाई ये असातिज़ा की ज़िम्मेदारी में है। इसलिए कि उस्ताद एक मेमार की तरह होता है। जब वो मेमार जिस चीज़ को समझता है और उसको तरक्की तक पहुँचाने की। सऊदी सड़क हादसे पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अरबी और अंग्रेज़ी में ट्वीट। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मदीना मुनव्वरा में पेश आए अलमनाक हादसे पर गहरे रंज व गम का इजहार किया है। एक्स पर अरबी और अंग्रेज़ी में ट्वीट करते हुए इन्होंने कहा कि मैं मदीना मुनव्वरा में पेश आने वाले इस अफसोसनाक हादसे से निहायत रंजीदा हूँ जिसमें हमारे मुल्क के शहरी जाँ बाख हुए। मुतासिरा ख़ानदानों से दिली ताज़ियत करता हूँ और ज़ख्मों की जल्द सेहत याबी की दुआ करता हूँ। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियाद में भारतीय सफारत खाना और जिद्दा में मुतासिरीन और इनके अहल खाना को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहे हैं। इन्होंने मज़ीद बताया कि भारतीय हुक्काम मुसलसल सऊदी हुक्काम के राब्ते में हैं ताकि ज़रूरी मदद और मालूमात फौरी तौर पर फराहम की जा सके। सऊदी अरब में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में शहीद होने वाले मुतासिरीन की मदद के लिए हुकूमत हर वक्त तैयार। किसी भी मदद के लिए कंट्रोल रूम से रब्ता करें। रियासती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, रियासती वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन व दीगर कायदीन का सहाफ़ती बयान। बहुत एक दुखद इंसिडेंट हुआ है जो सऊदी अरेबिया में हमारे हैदराबाद के लोग, जो तेलंगाना के लोग, काफ़ी 48 लोग उम्रा करने के बाद मदीना शरीफ ज़ियारत के जा रहे थे। गोबरी हाथ बोल के एक जगह है जो 20 या 25 किलोमीटर पहले वहाँ पे एक ऑयल टैंकर से बस कोलाइड हो गई और मेरे ख्याल में बहुत से लोग का इंतकाल हो गया। और वहाँ पे उसमें तो बच्चे भी थे और लेडीज़ भी थे, औरतें भी थे और फीमेल भी थे। तो ये बहुत दुखद वाक़या और ऐसा हुआ सुनने में आया, ऐसा मुझे इंफॉर्मेशन के बॉडीज़ भी काफ़ी चार्ज हो गई है और काफ़ी बियॉन्ड रिकग्निशन हो गई। बट लेकिन हम पूरी तरह से हमारी हेल्पलाइन हज हाउस में भी हमें हेल्पलाइन लगाए हुए हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी हेल्पलाइन लगाए और CM साहब का एक खास और एकदम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और पावरफुल इंस्ट्रक्शन है कि हम जितना भी हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से सहायता दे सकते हैं वो पूरी देना चाहिए। और CM खुद इसमें पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं और हम लोग मैं सऊदी काउंसिल जनरल उनसे सोहेल साहब से भी बात हुई थी तो सोहेल साहब ने ये कहा था कि हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश है और लोग स्पॉट पे हैं। काफ़ी लोग हॉस्पिटल में बॉडी शिफ्ट करी हुई है, किंग सलमान हॉस्पिटल, किंग फरहाद हॉस्पिटल में, और मेरे ख्याल में एक या दो शख्स मेरे ख्याल में सर्वाइव भी हुए। मतलब मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला से जितने लोग के फैमिली की डेथ हुई उनको सब्र दे, अता और जन्नत नसीब फरमाए, क्योंकि एक ऐसे मकाम पे उनका इंतकाल हुआ है। लेकिन देखिए जिसकी फैमिली के मेम्बर को लॉस होता है उनको कुछ पता होता है। एक फैमिली से मेरे ख्याल में 18 लोग के का इंतकाल हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि वो गम का क्या अपना सब्र, अल्लाह उनको सब्र दे। और हमारी तरफ से पूरी कोशिश है। मैं खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ और हमारे जो ऑफिसर्स हैं, सेक्रेटरी है, सब लोग मॉनिटर कर रहे हैं और हम इसको जितना हम हमारी तरफ से वो करेंगे हम देंगे। और हम लोग कोशिश भी यही है कि हमारे के जितने भी फैमिली में से रहते होते एक आदमी को हम यहाँ से अगर पासपोर्ट नहीं है तो पासपोर्ट अरेंज करेंगे, वीज़ा भी अरेंज करेंगे और उनको जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि लास्ट जो हो रहे थे 13 गाँव
मामला रहता तो वहाँ पे अगर उनके ऊपर है, उनकी मर्जी है, अगर वो वहाँ चाहते हैं तो वहीं कर होगी, अगर यहाँ पे अगर लाना चाह रहे हैं तो वो भी हम बात करके पूरी कोशिश करेंगे। हमारी तरफ से हमारी गवर्नमेंट पूरी कमिटेड है। ये बहुत बड़ा दुखद और बड़ा इंसिडेंट है, तो बिल्कुल मैं भी बहुत एकदम सुबह मुझे पता चला तो मुझे बहुत दुख लगा, बट लेकिन हमारी तरफ से गवर्नमेंट की तरफ से पूरी कोशिश है, हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से हम लोग ने जहाँ जहाँ पे मिनिस्ट्री सबसे बात हो रही है, कोशिश करके लोग, हमारा पहला काम यही रहेगा कि हम लोग कोशिश करके जिसके लोगों के इंतकाल हुआ है उनकी फैमिली से एक या दो, मोस्टली एक ही होगा, या कोशिश करके जितना हो सके हमारी तरफ से करके हम लोग उनको वहाँ भेजेंगे, तो दैट वो आखिरी देख लें। सर तफ्तीम यहाँ पे होंगी सब, वहाँ पे यहाँ की फैमिली मेम्बर्स? देखिए फैमिली के ऊपर है, अगर वो लोग डिसाइड करते तो वहीं पे होगी, तो अमूमन ये वही है होता है कि वहीं पे होती है। क्योंकि मैं काफ़ी लोग से ऑफिसर से भी प्रॉब्लम में बात किया था, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि जनरल बकी में वहाँ पे उनकी तस्वीर हो, उससे अच्छी बात तो होने सकती जन्नत बकी से, तो उसके बाद बट लेकिन हमारी पूरी कोशिश है। ये मेरा प्राइमरी जो मुझे मालूम हुआ ये है, और इंशाल्लाह और ज़्यादा से ज़्यादा और इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं बता दूँगा। थैंक यू। रामडगू गरीब आवाम के ज़मीनात के मसाइल को हल न करने की सूरत में एहतजाजी में शिद्दत पैदा करने का CPI-ML मास लाइन कायदीन ने किया इजहार। धरपल्ली मंडल के मुकाम पर वाक़ तहसीलदार दफ्तर के रूबरू अखिला भारतीय आकिया रईतु संगम CPI-ML मास लाइन धरपल्ली श्रीकोंडा मंडलों के कमेटी के ज़ेर एहतमाम AIUKS प्रोजेक्ट रामडगू देहात से ताल्लुक़ रखने वाले 1150 सर्वे नंबर में पट्टा जात हासिल करने वाले मुस्तहिक़ीन के साथ धरने का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मासलाइन CPI-ML ज़िला कायदीन R रमेश ने कहा कि उस वक्त की कांग्रेस हुकूमत 20 साल से पहले गुरबा की शनाख्त करते हुए कब्ज़ा करने वाले गरीब आवाम को 270 पट्टा जात फराहम करने के अलावा डिजिटल पासबुक हवाले करने के बावजूद भी हुकूमत इन मसाइल को हल करने में लापरवाही करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत को CLDP स्कीम के तहत लाखों रुपयों की अदायगी अमल में लाते हुए ज़मीन को बराबर करते हुए धान के बीजों को बोया गया और फसलों की काश्तकारी करने के दौरान महकमे जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से रुकावट डालना जालिमाना हरकत होने का इजहार किया। इस ताल्लुक़ से हुकूमत को कई बार इल्म में लाने के बावजूद भी कोई खातिर ख्वाह तवज्जो नहीं दी जा रही है और इसके अलावा रिवेन्यू और महकमे जंगलात के ओहदेदारों की जानिब से सर्वे करने का तयख्खुन देकर कई साल बीत गए हैं। इन्होंने कहा कि रामडगू गरीब आवाम के ज़मीनात के मसाइल को हल करते हुए इनके साथ इंसाफ करने का इजहार किया। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन निज़ामाबाद में नव मुंतखब होने वाले ज़िले शाख के नुमाइंदों ने CP साई चैतन्य से की मुलाकात। शहर निज़ामाबाद के मुकाम पर वाक़ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में नव मुंतखब होने वाले ज़िला शाख के नुमाइंदों ने अदब व एहतराम के साथ पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य से मुलाकात करते हुए एक फूल का पौधा हवाले किया। इस मौके पर IMA निज़ामाबाद सदर डॉक्टर विशाला अकुला ने कहा कि महकमे पुलिस की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमल आवारी न करके सर पर हेलमेट ना लगाने की वजह से अचानक पेश आने वाले हादसे में सर पर शदीद चोटें आने के अलावा इस सड़क हादसे में कई इंसानों की कीमती जान ज़ाय होने पर काफ़ी अफसोस होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हर एक शख्स अपनी इज्तिमाई जिम्मेदारियों के तहत गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ात और सर पर हेलमेट लगाने के अलावा महकमे पुलिस की जानिब से फराहम करदा ट्रैफिक क़वाइद पर अमल आवारी करते हुए न सिर्फ आप अपनी कीमती जान की हिफाजत कर सकते बल्कि दूसरे भी आपसे महफूज रख सकते हैं। इन्होंने कहा कि रोड सेफ्टी और पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्शन हिस्से के तहत IMA निज़ामाबाद ब्रांच और श्री विष्णु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मुश्तरका ज़ेर एहतमाम पुलिस कमिश्नर P साई चैतन्य की तजावीज़ के मुताबिक करीब हेलमेट की तकसीम पर मबनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने का इजहार किया। ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే చాలామంది ప్రతి సంవత్సరం ఏంటంటే రోడ్డు ప్రమాదంలో తలకు గాయాలై హెల్మెట్ లేకపోవడం ద్వారా చాలామంది మరణిస్తున్నారు. సో మేము IMA నిజామాబాద్ ద్వారా అంటే CP గారి సలహా మేరకు ఇవాళ మేము ఒక IMA నిజామాబాద్ ద్వారా ఒక హెల్మెట్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ప్లాన్ చేశాము. దీని ద్వారా ఏంటంటే ఒక 100 హెల్మెట్స్ని అంటే మేము ఏంటంటే
నిజామాబాద్ నగర ప్రజలకు సిపి గారి సలహా మేరకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దామనుకుంటున్నాం. ఇవాళ ఆ హెల్మెట్ని సిపి గారు ఆవిష్కరించారు. సో ఇలా అంతేకాకుండా ఏంటంటే ఐఎంఏ నిజామాబాద్ అనేది गटकुल देहात में अवाम के चहीते कायद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले सीएमआरएफ चकों को डीसीसी जनरल सेक्रेटरी वेलमा भास्कर रेड्डी के हाथों मुस्तकीन को किया गया हवाले। गटकुल देहात में अवाम के चहीते कायद रूरल रुकन असम्बली निज़ामाबाद डॉक्टर भूपत रेड्डी की काविशों के सबब मंजूर होने वाले एसएमआरएफ चकों को डीसीसी जनरल सेक्रेटरी वेलमा भास्कर रेड्डी के हाथों 4 मुस्तकीन में तकरीबन 1,50,000 रुपये पर मबनी एसएमआरएफ चकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मंडल से मुतालिक मौज़ूआत के मुस्तकीन ने अवाम के चहीते कायद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के अलावा डीसीसी जनरल सेक्रेटरी वेलमा भास्कर रेड्डी को दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर किया और इसके अलावा निज़ामाबाद रूरल रुकन असम्बली डॉक्टर भूपत रेड्डी के अहकामात के मुताबिक डीसीसी जनरल सेक्रेटरी वेलमा भास्कर रेड्डी ने श्रीकोंडा मंडल सरपंच तांडा ग्राम पंचायत के हुदूद में मेगावत सरदा लक्ष्मी नामी खातून का घर शॉर्ट सर्किट के जद में आने के ताल्लुक से हासिल करदा इत्तलात के फौरी बाद जाए मुकाम का जायज़ा लेते हुए इन्हें ज़रूरी अशिया के अलावा कुछ नकद रकम हवाले किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम की ज़ाती घर के ख्वाब को हकीकत में तब्दील करने के मकसद के तहत शुरू किए गए इंदिरा इल्लू स्कीम के तहत घर की फराहमी अमल में लाने के ताल्लुक से तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में कोंडापुर मौजू के सदर एन भूचन्ना, भानुचंद्र, किशनगढ़, गौसुद्दीन, आकुला जगन के अलावा दीगर ने शिरकत की। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस कायदीन मुस्तकीन में सीएमआरएफ चकों की तकसीम। कमरपल्ली मंडल के मुकाम पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर एस रवि ने हुकूमत की जानिब से गरीब आवाम को खानगी हॉस्पिटल में मेयारी इलाज व मुआलजा फराहम करने के मकसद के तहत शुरू की गई सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत मंजूर होने वाले एसएमआरएफ चकों को मुस्तकीन में फराहमी अमल में लाई गई। हुकूमत की जानिब से मुतारफ़ करदा सीएम रिलीफ फंड स्कीम के तहत एन लक्ष्मी को 19,500 रुपये का सीएमआरएफ चक हवाले किया और गणेश को 24,500 रुपये और पी लक्ष्मी को 36,000 रुपये का सीएमआरएफ चक हवाले किया गया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से इंतखाबात के मौके पर जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में दिए गए तमाम वादों को मरहला और तरीक़े से नाफिज करते हुए हर एक स्कीम के समरात से बालिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को हुकूमत स्कीमात के समरात से मुस्तफ़ीद करवाने वाली वाहिद हुकूमत कांग्रेस होने का इजहार किया। इन्होंने मज़ीद कहा कि सतह गुरबत से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब आवाम को कॉरपोरेट तर्ज के तौर पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने के मकसद के तहत सीएम रिलीफ फंड स्कीम को शुरू किया है और इस स्कीम के तहत मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला होकर खानगी हॉस्पिटल में शरीक तिब्बी इमदाद हासिल करने वाले मुस्तकीन के दरकार अखराजात की अदायगी अमल में लाने का इजहार किया। प्रजावानी प्रोग्राम को अहमियत देते हुए आवाम से मुतालिका शिकायतों को फौरी तौर पर हल करने की जिला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। जिला निज़ामाबाद कलेक्टरेट दफ्तर में इनकाद अमल में लाए गए प्रजावानी प्रोग्राम में 101 शिकायत मौसूल हुई, जो कि ज़िला के मुख्तलिफ इलाक़ों से आने वाले शिकायत कुनंदगान ने इनसे मुतालिक दरख्वास्तों को कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी के अलावा एडिशनल कलेक्टर अंकित किरण कुमार, जिला परिषद सीईओ सायागौड, ट्रेनी डिप्टी कलेक्टर संदीप, डीपीओ श्रीनिवास, हाउसिंग पीडी पवन कुमार को हवाले किया। ताहम कलेक्टर ने हासिल करदा दरख्वास्तों का जायजा लेते हुए आवाम से मुतालिक शिकायतों को बारीक बीनी से जायजा लेते हुए फौरी तौर पर हल करने के ताल्लुक से ओहदेदारों को हिदायत जारी। बाद अज़ाम माज़रीन वेलफेयर अपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आलमी यौम मामिरीन के मद्देनज़र तबाअत किए गए वाल पोस्टर को ज़िला कलेक्टर टीवी ने कृष्णा रेड्डी के हाथों रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस प्रोग्राम में ज़िला वेलफेयर ऑफिसर रसूल बी के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों ने शिरकत की। अवामी मसाइल को हल करने के मकसद के तहत जद्दोजहद करने का तेलंगाना जागृति सदर के कविता का इजहार। जिला खम्भम में वाक़े एरूपालम मंडल के जमलापुरम में तेलंगाना जागृति सदर के कविता ने तूफ़ानी दौरा करते हुए
मुख्तलिफ प्रोग्राम में शिरकत की। आज और कल ज़िला खम्मम का 2 दिन दौरा करेंगे। इस हिस्से के तहत हैदराबाद से सतावाना एक्सप्रेस में कल इतवार को मदीरा पहुंचने के बाइस जागृति कायदीन कारकुनान के अलावा मदाहों की जानिब से रेलवे स्टेशन में के कविता का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर के कविता ने कहा कि जागृति जन्म बाटा के तहत अवाम को दरपेश मसाइल के ताल्लुक से आगाही करते हुए इसके हल के लिए सीएम रेवंत रेड्डी हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि इन पर इल्ज़ामात आयद करने वाले अशखास को तवील अरसे तक कोई भी फर्द तहफ़्फ़ुज़ ना करने का इंतबाह दिया। इन्होंने मज़ीद कहा कि बीजेपी और बीआरएस पार्टी की नाकामियों की वजह से ही जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस फतेह हासिल करने का इजहार किया। मुत्तहिदा निज़ामाबाद कामरेड्डी ज़िलों में जूनियर्स खो खो वनडे टूर्नामेंट का किया गया शानदार पैमाने पर इनेकाद। मुत्तहिदा निज़ामाबाद कामरेड्डी ज़िलों में 44वीं जूनियर्स अंदरून 18 साल बॉयज़ एंड गर्ल्स खो खो वनडे टूर्नामेंट DCA ग्राउंड शहर निज़ामाबाद में आगाज़ अमल में लाया गया। इस टूर्नामेंट में मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद खो खो एसोसिएशन चेयरमैन बिल्ला अनिल और सदर GV भूमारेड्डी और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अतीक, ट्रेजर एन मधुसूदन रेड्डी और वाइस प्रेसिडेंट गोपी रेड्डी रामू मोहन रेड्डी के अलावा सेक्रेटरी सुजाता, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी नागेश्वर राव के असातिज़ा साहिबीन और बॉयज़ टीम और गर्ल्स टीम ने शिरकत की। इस टूर्नामेंट में मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को इस माह की 19 तारीख को सपहर 3 बजे से 26 तारीख तक बॉयज़ के उप्पलवई रेसिडेंशियल स्कूल कामरेड्डी में और गर्ल्स को गीता कॉन्वेंट हाई स्कूल नंदीपेट में ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के बाद इस माह की 27 तारीख से 30 तारीख तक संगारेड्डी ज़िले में वाक़ पठान तालाब में मुनक़िदा रियासती सतह के टूर्नामेंट में मुत्तहिदा ज़िला निज़ामाबाद की तरफ से शिरकत करेंगे। ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా క్రీడాకారులు 15 మంది క్రీడాకారులు మెన్ అండ్ ఉమెన్ సెక్షన్ లో అక్కడ పాల్గొనడం జరుగుతుంది. వీరు బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేసి క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. బాయ్స్ కు కామారెడ్డి జిల్లాలోని ఉప్పల్వాయి స్కూల్లో 10 రోజులు క్యాంప్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. అదే విధంగా గర్ల్స్ కు గీతా కాన్వెంట్ నందిపేట్లో కరెస్పాండెంట్ సాగర్ సార్ యొక్క ఆధ్వర్యంలో మరియు పీఈటీస్ అండ్ పీడీస్ ఆధ్వర్యంలో అక్కడ బాయ్స్ కు గర్ల్స్ కు క్యాంప్ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ మంచిగా ఆడి మీ యొక్క ప్రతిభ కనబర్చి అక్కడ కూడా క్యాంపులో శిక్షణ పొంది 27వ తారీఖు నుండి మనము నిజామాబాద్ పేరును రాష్ట్ర స్థాయిలో నిలబెడతారని కోరుకుంటున్నాను. कांग्रेस और बीआरएस ने बेरोजगार तलबा को रोजगार अलाउंस देने का वादा करते हुए धोखा देने का अर्बन एमएलए धनपाल ने किया इजहार। निजामाबाद अर्बन एमएलए धनपाल सूर्या नारायण गुप्ता ने कहा कि साल 2018 में बीआरएस के इंतखाबी मंशूर में बेरोजगारों के लिए हर माह 3.16 रुपये बेरोजगारी अलाउंस देने का वादा करते हुए धोखा दिया है और अब बरसरे इख्तिदार कांग्रेस की जानिब से साल 2023 के इंतखाबी मंशूर में तलबा को 15 लाख तालीमी एतमार कार्ड देने का वादा करते हुए धोखा देने का इल्ज़ाम आयद किया है। प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत शिकायत कुननगान से 20 शिकायतों को सीपी सईद चैतन्य ने कबूल किया। जिला निजामाबाद पुलिस हेडक्वार्टर में पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य की क़ियादत में प्रजावाणी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सीपी ने शिकायत कुननगान से मुतालिक मसाइल को कानून के मुताबिक हल करने की इससे मुतालिक ओहदेदारों को तजावीज़ दी, जो कि आज प्रजावाणी प्रोग्राम के तहत ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले शिकायत कुननगान से दरख्वास्तें कबूल की। इन्हें फौरी तौर पर हल के लिए इससे मुतालिक पुलिस स्टेशन के SI और CI को फ़ोन के तहत इन मसाइल के बारे में तबादला ख्याल करते हुए इस मसले को हल करने की हिदायत दी। सीपी ने कहा कि अवाम बेखौफ होकर किसी तीसरे फरीक के बगैर किसी भी किस्म के पैरवी ना करके खुद रजाकारना तौर पर पुलिस स्टेशन की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करने का इजहार किया। हैदराबाद में वाक़े गांधी भवन में वोट चोरी एहतजाजी प्रोग्राम का TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने शिरकत करते हुए किया खिताब। कांग्रेस के ज़ेरे एहतमाम गांधी भवन में मुनक़िदा वोट चोरी के एहतजाजी प्रोग्राम में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ के अलावा रियासती वजीर P प्रभाकर, MP अनिल यादव, AICC सेक्रेटरी संपत कुमार व दीगर ने शिरकत की। NCC कराटे लीग में TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने की शिरकत। NCC कराटे लीग 2025 प्रोग्राम में बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ ने शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश की।
इस मौके पर इन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में कराटे को एक मकबूल अवामी खेल के तौर पर तरजीह दी गई है और कराटे की तरक्की के लिए हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तौर पर ताउन देने का इजहार किया। नौजवान सही रास्तों पर चलेंगे तो ही मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा, सीपी सईद चैतन्य। कमेटी प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मंशियात और बुरी आदतों से दूर रखने के लिए नौजवानों के लिए इनकाद अमल में लाए जाने वाले क्रिकेट टूर्नामेंट की अख्तितामी तकारीब में पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य ने शिरकत की। इस मौके पर सीपी ने कहा कि नौजवान सही रास्तों पर चलेंगे तो ही मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर रहने का इजहार किया। बोधन डिवीज़न के हुदूद में वाक़ बोधन रूरल एडपल्ली रेंजल पुलिस स्टेशन के ज़ेर एहतमाम इनकाद अमल में लाए गए क्रिकेट टूर्नामेंट को एडपल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में ज़िला पुलिस ट्रेनिंग मैदान में 26 टीमों का क़याम अमल में लाकर कमेटी कंट्रैक्ट प्रोग्राम के तहत नौजवानों को मंशियात और बुरी आदतों से दूर रखने के लिए नौजवानों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट प्रोग्राम को बोधन पुलिस के ज़ेर एहतमाम गुज़िश्ता एक हफ्ते से इनकाद अमल में लाया गया। आज इस क्रिकेट टूर्नामेंट के अख्तितामी प्रोग्राम में पुलिस कमिश्नर पी सईद चैतन्य ने की शिरकत। ఆడారు అందరికీ ఫస్ట్ కంగ్రాచులేషన్స్। కానీ ఫస్ట్ థింగ్ మనం ఎందుకు ఈ అంత టోర్నమెంట్ ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం అనే దాని మీద గురించి ఒకసారి ఆలోచించాలి। మన యువతని మనం కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత మన పైన ఉంది। అనవసరంగా వ్యసనాల వైపు వెళ్లకుండా ఇటువంటి ఆటలు క్రికెట్ లేదంటే వేరే క్రికెట్ ఫుట్బాల్ వాలీబాల్ ఏదైనా లేదంటే చదువు ఇటువంటి వైపు మనం డైవర్ట్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది। దాని ఉద్దేశంతో సే నో టు డ్రగ్స్ సే ఎస్ టు స్పోర్ట్స్, యాక్చువల్లీ సే నో టు డ్రగ్స్ సే ఎస్ టు లైఫ్। మన జీవితం కన్నా మించింది ఏది లేదు। ఎటువంటి ఆనందాలైనా ఎటువంటి సుఖాలైనా జీవితాన్ని మించింది కాదు। ఈ డ్రగ్స్ అనేవి మన జీవితాన్ని పోతున్నారు, వాళ్ళ ఫ్యామిలీలు రోడ్డు మీద పడుతున్నాయి। అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం क़ज़ाअत के किताबों पर आज भी पुरानी दस्तखत। आरटीआई में सदर काजी की हैसियत से काजी मुफ्ती महबूब खान का नाम आया। अवाम किसी गुमराही का शिकार ना हो, काजी मुफ्ती महबूब खान का सहाफ़ती बयान। सदर काजी निज़ामाबाद आज शहरियान निज़ामाबाद के सामने एक हकीकत आश्कारा करने जा रहा हूँ। 2 दिसंबर 2024 को मुश्तबा अली का बहैसियत काजी निज़ामाबाद तकर्रुर इस तरह की एक न्यूज़ आई थी, जिसके बाद शहर के कई अफराद हमसे रुजू हुए और हमसे बार बार सवाल करने लगे। हमने लाइल्मी का इजहार किया, लेकिन उसके बाद अब्दुर्रहमान नामी एक शख्स ने एक आरटीआई दाखिल किया। इनके इस खबर को लेकर, न्यूज़ को लेकर गवर्नमेंट को एक सवाल किया कि निज़ामाबाद के काजी कौन हैं और मुश्तबा अली वल्द शौकत अली ये निज़ामाबाद के काजी है या नहीं है, जवाब इनायत फरमाएं। तो उसका जवाब इस तौर पर आया, आप देख सकते हैं कि हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक महबूब खान निज़ामाबाद अर्बन के काजी है। और फिर जो सवाल हुआ दूसरा कि निज़ामाबाद के मुश्तबा अली काजी है या नहीं है, तो साफ साफ जवाब आ गया कि मुज्तबा अली नामी काजी नहीं है। नंबर 1 पर आप देख सकते हैं, नंबर 1 पर महबूब खान काजी है एज पर गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से, और दूसरा मुश्तबा अली काजी है या नहीं है, तो जवाब आ गया नो, उन्हों काजी नहीं है। भाई फिर ये अवाम को धोखे में क्यों डाला जा रहा है? इस तरह के अखबार में न्यूज़ क्यों डाली जा रही है? आपको निज़ामाबाद का काजी कौन बनाए? अगर आपके पास कोई सरकारी अहकामात या जियो है तो आप उसको इशू करें। आपके नाम से अगर जियो है तो बताएं। मैं अवामुन्नास, मुअज़्ज़िज़ीन शहर और ज़िम्मेदारान शहर, जो एक मखसूस तबका है शहर का, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अवाम जब आपसे रहनुमाई के लिए आए तो आप उनको सही रहनुमाई फरमाएं कि निज़ामाबाद के काजी कौन हैं। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि आज से 15 साल पहले जो दस्तखत शौकत अली साहब मरहूम के ज़माने में काजी की जगह पर दस्तखत होती थी, आज भी 2025 में भी वही दस्तखत पर बुकें इशू हो रही हैं।
اور پھر یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ قاضی مشتبہ علی ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دیکھ سکتے ہیں 2025 کی بک ہے، یہ 2025 کی بک میں بھی وہی دستخط چل رہی، اور مناسب اس کو غور سے لیں، صدر قاضی کی جگہ پر جو دستخط ہے وہ آج سے 20 سال پہلے ہو یا 15 سال پہلے ہو وہی ہے، اور آج بھی وہی دستخط ہے۔ آپ احباب تاریخ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر۔ اختتام سے خبر نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ سعودی عرب میں پیش آیا خوفناک سڑک حادثے پر وزیر اعظم نریندر مودی، ریاستی وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے علاوہ مختلف سیاسی قائدین نے کیا افسوس کا اظہار۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ہیلپ ڈیسک کا کیا گیا قیام۔ مکہ مکرمہ حادثے میں جاں بحق ہونے والے افراد خاندان کے لیے ایکس گریشیا کا اعلان۔ ہر خاندان کے 2 افراد کو سعودی لے جانے کا کیا جائے گا انتظام، ریاستی کابینہ۔ حیدرآباد میں واقع گاندھی بھون میں ووٹ چوری احتجاجی پروگرام میں ٹی پی سی سی چیف MLC مہیش کمار گوڑ نے شرکت کرتے ہوئے کیا خطاب۔ نظامباد سی پی سعید چیتنیا سے IMA نو منتخب ضلعی شاخ کے نمائندوں نے کی ملاقات۔ سی پی کی تجاویز کے مطابق موٹر سائیکل مالکین کو ہیلمٹ کی فراہمی عمل میں لا کر حادثے پر قابو پانے کا IMA کے نمائندوں نے کیا اظہار۔ عوامی مسائل کے حل کے لیے جدوجہد کریں گے۔ ضلع کھمم کے ایروپالم منڈل کے جملہ پورہ میں تلنگانہ جاگرتی صدر کے کویتا نے کیا طوفانی دورہ۔ کانگریس اور BRS نے بے روزگار طلباء کو روزگار الاؤنس دینے کا وعدہ کرتے ہوئے دھوکہ دیا، اربن MLA دھن پال کا اظہار۔ محکمہ پولیس کے تحت موصول ہونے والے 20 شکایتوں کو فوری طور پر حل کرنے کے لیے سی پی سعید چیتنیا نے اس سے متعلق پولیس اہلکاروں کو دی ہدایت۔ آج کے لیے اتنا ہی، دے اجازت، اللہ حافظ۔